Assalamu alaikum and hello everybody. My name is Arisha Tanveer and I am Associate Director at Media and Marketing Department. I hope you all are doing fine. So today we have very talented, well-informed and clinical nutritionist on board with us, Mahnur Sajid and Maria Nadeem. Mahnur and Maria would require you to briefly introduce yourselves and so far what you have managed to accomplish. Assalamualaikum. I am Mahnoor, and I had an experience Okay, of I am Maria working Nadeem as a Khan. clinical. So there Okay, we is maybe an voice issue. okay. So I don't. Okay, Manu, you will go first. I'm Mahnoor, and I had an experience of working as a clinical nutritionist with Punjab Food Authority in two different districts in Lahore and in Rawalpindi. And recently, I am giving an online consultation at my own website. Okay, it's Maria Nadeem here. I am a clinical nutritionist and registered dietitian. Currently, I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. I am eating disorder specialist plus weight loss specialist. Clear? And can you hear me? Thank you so much, Maria and Mahnur. So I like to briefly discuss about what we're going to discuss in this session, as we will trace our way to a balanced diet. Because as we all know कि जितनी अच्छी हमारी ग़ज़ा होगी उतनी अच्छी हमारी सेहत होगी, and ultimately it will lead to a good lifestyle and a good quality of life. So, and also we have like receiving a lot of complaints related to weight gain in lockdown, and we've also finding it like some people are also finding it hard to trace back to their original health after being recovered with COVID-19. So this is like the main idea of our live session, and we'll be keeping all of such things in mind and moving forward, answering questions alternatively. So the first question is, what type of food should we avoid if we are on a weight loss routine? Hmm. Weight loss में जो है, it's a particular program of diet you should follow. Or I always encourage के don't go for fat diet, which are incomplete or imbalanced diet. ठीक है? Always look for the nutrients. If they are not inappropriate present in the diet, don't go for them. ठीक है? आजकल जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत सारी बनाना डाइट्स और एग नूडल डाइट और ये सब डाइट्स निकल आई हैं. दे आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर वेट लॉस. इसमें आपको वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म्स दे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. इसमें हेयर लॉस वगैरह हो सकता है और आपके जीआई इश्यूज और लिवर के मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं. जो जनरली एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम रिकमेंड करते हैं वेट लॉस में, उसमें वी ऑलवेज गो फॉर लो कार्बोहाइड्रेट्स. और लो कार्बोहाइड्रेट्स डजंट मीन कि आप बिल्कुल हैव अ हेल्दी ऑप्शन एज वेल. ठीक है? इसमें हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन्स और हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हम डाइट प्लान बनाते हैं. फ्राइड फूड्स, हाई शुगरी फूड्स, हाई प्रोसेस्ड फूड्स को डिस्करेज किया जाता है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज नीडेड व्हेन यू वांट टू लूज वेट. Okay. Next, we have question for Manur. What should be healthy diet after COVID-19 recovery? I mean, they're trying to ask कि हमारी diet कैसी होनी चाहिए after we are being diagnosed and recovered from COVID-19.
जो हमारी डाइट है ना आफ्टर अगर पर्सन इफ समवन सफर फ्रॉम कोरोना वायरस और वो रिकवर हो जाता है या ड्यूरिंग मतलब कोविड उसको जो डाइट है ना वो डेफिनेटली बैलेंस डाइट ही रखनी चाहिए। मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो हम वायरल डिजीज़ेज़ के लिए टारगेट कर सकते हैं। उनको हम ये कोई एक फूड ग्रुप भी नहीं हम कह सकते या कोई एक रेसिपी भी मैं रिकमेंड नहीं कर सकती कि आप कोई इस तरह की कोई फ्रूट ले लो या कोई डिश ले लो जिससे आप जो हो वो रिकवरी के बाद या फिर आप ये खाने से रिकवर हो जाओगे। देयर इज़ नो समथिंग लाइक दिस टिल येट। लेकिन येस हमें बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें हम सारे फूड ग्रुप्स अपने इंक्लूड कर रहे हों। अगेन हमें प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और विटामिन ए रिच फूड्स, विटामिन ई, जिंक और विटामिन सी इन सब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ हम फूड सोर्सेज डिस्कस करें तो पपाया इज़ अ वेरी हेल्दी फूड सोर्स आफ्टर रिकवरी। सेम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल डाइट भी आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बाद में ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको कोई वीकनेस ना हो और आप अगर इम्यूनिटी वीक हुई हुई है तो दोबारा से किसी भी तरह की वायरल डिजीज़ के चांसेस कम से कम हो। उसमें हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट सीड्स हर्ब्स जैसे ग्रीन टी ले सकते हैं हम। जैसे हम लोग जिंजर यानी कि अदरक लहसुन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें और कुछ डिफरेंट फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें एक्सेप्ट बैलेंस डाइट अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। Okay. So next question is there any way to increase height after puberty? Should I answer it? Yes, please, Maria. Okay. Yes, there are chances of increasing height after puberty, but many factors are affecting behind it. और इसमें जो है बहुत सारे आपके फैक्टर्स उसमें आ रहे होते हैं। इसमें आपका हेरिडिटी फैक्टर है। ऑब्वियसली इफ योर पेरेंट्स हैव शॉर्ट हाइटेड तो यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ शॉर्ट हाइटेडनेस। इसी तरह आपकी न्यूट्रिशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी। और उस न्यूट्रिशन में उसमें आपके ऑब्वियसली हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन का इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक में जिंक का इंटेक प्लस कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स, फास्फोरस लेवल्स, ये आपकी डाइट में प्रॉपर होने चाहिए। जब इनकी डेफिशिएंसी नहीं होगी तो देयर आर चांसेस टू गेन वेट आफ्टर प्यूबर्टी। और अगर आप देखें कि बच्चों में ये सब चीजें पूरी जा रही हैं, यानी कि न्यूट्रिशन भी एडिक्वेट है और पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं मसला, तो देयर मे बी सम हार्मोनल इश्यूज, तो उस वजह से जो है वो हाइट टूट जाती है। तो जस्ट गो फॉर द checkup to endocrinologist to rule out the basic problem. ठीक है? Okay, next question is for you, Manu. What does a healthy diet look like to you? अगर मैं लाइक अपना पर्सनल इसमें मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगेन बैलेंस डाइट जिसमें ऑल फूड ग्रुप्स 5 मेजर फूड ग्रुप्स जो हैं वो इंक्लूड हों, प्लस जो कैलोरीज हैं वो लो कैलोरिक फूड्स लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, जो हम लोग फोकस करें न्यूट्रिशन पे, ना कि कोई ऐसा हम मील लें जो कि हमें 600 टू 800 कैलोरीज दे दे, बल्कि गो फॉर सच मील्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में वैरायटी दे रहे हो, हमारी न्यूट्रिशन को जो है बॉडी की वो बेहतर कर रहे हो। Okay. Next question is for Maria, and it is which multivitamins would you recommend for girls they should take on a daily basis? I mean, is there any requirement for multivitamins that girls should be taking every single day? Yes, there are many multivitamins available in the market, और go for their nutrition label first. उसमें obviously उनका जो टोटल कंटेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट का उसको चेक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लड़कियों के लिए स्किन और हेयर से रिलेटेड भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको चेक करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बायोटीन आता जाता है, जिंक आ जाता है, इसी तरह पेंटोथेनिक एसिड आ जाता है, विटामिन बीज आ जाते हैं, क्योंकि आजकल मेरी ऑब्जर्वेशन में विटामिन बी की डेफिशिएंसी गर्ल्स में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, क्योंकि वो मीट
मीट प्रोडक्ट्स को बहुत अवॉइड कर रही थी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है। फिर आयरन डेफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो गर्ल्स में वो बहुत ज्यादा है, और इस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उनका हेयर लॉस हो रहा है, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत अफेक्टेड है, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अफेक्टेड है। तो जब आप मल्टीविटामिन की बात करते हैं तो गो फॉर आयरन सप्लीमेंट्स। प्लस आयरन सप्लीमेंट्स के साथ में कहूंगी विटामिन सी का बहुत रोल है ऑब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब भी आप आयरन लो तो आप उसका कॉम्बिनेशन विटामिन सी के साथ करो ताकि वो एब्जॉर्ब भी अच्छा हो सके। इसी तरह जिंक का अपना रोल है फॉर मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, जिंक डेफिशिएंसी इज आल्सो प्रेजेंट इन गर्ल्स और एज वेल एज इन बॉयज, तो उसको मॉनिटर करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आप चेक करते हैं मल्टीविटामिन में। और वैसे तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारा ये कहना होता है अगर आपकी डाइट इट शुड बी एडिक्वेट एंड बैलेंस, so there is no need to add multivitamins in your diet. But if your diet is not adequate, then do add it. Hello, are you able to hear me loudly? Yes. Okay. Yes, yes. So Manur, you're going to answer the next question: how to boost your immune system and have it ready for any fight or flight response. इम्यून सिस्टम के लिए हम लोगों को मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लाइफ आई थिंक एज अ मदर अपने बच्चों के लिए, और फिर जैसे जैसे क्योंकि शुरू के अगर इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए शुरू में ही डाइट का फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फेज ऑफ लाइफ ही शुरू कर देना चाहिए, कि बजाय इसके कि हम एक सर्टेन फेज में आके रियलाइज हो कि हम बीमार जल्दी हो रहे हैं या हमारी जो है वो इम्यूनिटी वीक है, हम ज़्यादा प्रोन है डिजीजेस से। तो आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ मैसेज टू ऑल मदर्स हियरिंग कि आज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड आप उनकी इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करें, ताकि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ना जो हो बीमारियों आगे का शिकार ना हो, डिफरेंट वायरल डिजीज़ से बचा रहे। तो इसके लिए जो माय पर्सनल टेक इज़ कि आप ज़रूर जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके ऊपर फोकस करें हर मदर, ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट सोर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आप बच्चे का जो अच्छा क़ुव्वत मुदाफ़अत है ना वो आप बिल्ड करना शुरू हो जाते हो। व्हाट डू यू थिंक मिस मारिया? Yes, उसमें इम्यूनिटी में I always mention some important things. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मानूर ने बताई कि ऑब्वियसली अर्ली ग्रोथ डेवलपमेंट, अर्ली न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, अर्ली न्यूट्रिशन ना सिर्फ इम्यूनिटी के लिए बल्कि आगे हमारे आने वाली जिंदगी के हर शोबे में न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान ओबेसिटी में 9वें नंबर पे आ चुका है, और जितना इंसान ओबीस होगा या मोटापे का शिकार होगा उतना उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। तो वेट आपका प्रॉपर होना, बीएमआई के अकॉर्डिंग होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड इम्यून सिस्टम। प्लस आपका अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपके इम्यूनिटी सेल्स का ताल्लुक आपके डाइजेस्टिव बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा है। तो आप ये देख लो कि जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा। तो आपका अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका वेट बीएमआई की रेंज में होना बहुत जरूरी है बिसाइड न्यूट्रिशन के। तभी न्यूट्रिशन जो है वो आपका एक प्ले करेगा इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि जो खाना है आपने वो डाइजेस्ट होना है, और जो डाइजेस्ट होना है वही एब्जॉर्ब होना है, फिर मेटाबोलाइज होना है। बट इट विल बी नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, इट विल बी नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज इन योर सेल्स। तो गुड डाइजेशन लीड्स टू गुड इम्यूनिटी, and BMI rate in the ranges of BMI leads to good immunity. प्लस विटामिन सी के सोर्सेज आज जब से कोविड-19 हुआ है सबके जबान पे रट चुके हैं कि ये विटामिन सी के सोर्सेज है। यस, विटामिन सी हैज अ वेरी ग्रेट रोल, और न्यूट्रिशनल डाइटरी सोर्सेज नॉट सप्लीमेंट्स, डाइटरी सोर्सेज हैज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो उसको इनकॉर्पोरेट जरूर रखें अपनी डाइट के अंदर।
और वही बात महानूर वाली के बच्चों में शुरू से उनकी चीजों में हम चीजों की आदत डालेंगे, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालेंगे, तो ऑब्वियसली द लाइफस्टाइल लीड्स टुवर्ड्स गुड फैक्टर्स हैं जो अच्छी इम्यूनिटी और अच्छी कुव्वत मुदाफियत पे असरअंदाज हो। Okay, moving on to next question. We have okay, so we have this question. As a student, it gets tougher at times to have. Okay, we have this question. How to calculate? Okay, how to calculate BMI? As Dr. Maria was talking about BMI. So, how to calculate BMI without using online calculators? Because there's apparently a statement that mostly are inaccurate. महानूर आप इसका आंसर बताओ। आप BMI अच्छा, एक जो सिंपल फॉर्मूला है वेरी जिसको हम फॉलो सिंपल, हाँ वेरी सिंपल, कि आपका जो करंट वेट है उसको आप डिवाइड करो अपनी करंट हाइट से, इनटू मतलब वेट ओवर हाइट का स्क्वायर, एंड जो आपकी रेंज आएगी ना, तो फिर उससे आप क्लासिफाई कर सकोगे कि ये नॉर्मल है या ओबेसिटी है या अंडरवेट है या स्क्वायर ओबेसिटी है। एंड सारी मतलब अगर आप 18.5 से 25 तक फॉल कर रही है आपकी जो वैल्यू आ रही है, तो फिर आप नॉर्मल हो, इट्स अ हेल्दी BMI। बट अगर इससे प्लस है तो डेफिनेटली ओवर वेट और ओबेसिटी में जाता जाएगा टिल 40, एंड अगर 18 से कम है तो इट्स अंडरवेट। दोनों चीज़ें अलार्मिंग है। 18 से 18.5 से 25 तक जो है इट्स हेल्दी BMI। Okay, so we have to be careful that we are not neither underweight nor obese. Okay, do you think it's a myth that biotin or any other Yes. multivitamins would be responsible for weight gain? Dr. Maria, what do you think? Yes, it's totally a myth. Biotin has nothing to do with weight gain. ठीक है? Biotin, there is no research कि biotin has anything to do with fat cells. Biotin do nothing with the increase in the number of fat cells or in the size of a fat cells. ठीक है? It's your actually lifestyle. ठीक है? हम बहुत सारी चीजें अपने lifestyle में नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, और हम एक पर्टिकुलर मल्टीविटामिन और उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसकी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर विटामिन को लेना छोड़ देते हैं या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वेट गेन के लिए देयर आर मेनी फैक्टर्स। सबसे पहले जस्ट चेक योर लाइफस्टाइल, इज इट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है। फिर जस्ट चेक योर स्लीप पैटर्न्स आपके प्रॉपर ना हो तो इट कैन लीड्स टू वेट गेन। प्लस चेक योर डाइटरी पैटर्न्स एज वेल, वो आपकी प्रॉपर नहीं है, उनमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट हाई शुगरी फूड्स शामिल हैं, और फिर आप सारा दिन खा के बैठे रहते हो, तो ऑब्वियसली इट विल लीड्स अस टुवर्ड्स वेट गेन। प्लस हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे हैं, इट लीड्स टू वेट गेन। प्लस आपके पेरेंट्स में अगर वेट गेन की टेंडेंसी है तो फिर आपका वेट गेन बढ़ जाएगा। तो देयर इज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ बायोटीन, और विटामिन ई के साथ भी मैथ्स है कि विटामिन ई के मैं कैप्सूल्स खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो देयर इज नो सच थिंग। Okay, it was very on the point and valid point, because as like millennial generations, we are very leaning towards sedentary lifestyle. Okay, so we have what factors can decrease the risk of cardiovascular diseases? Which type of exercise and food can especially favor in reducing the CVD risk? Dr. Manu? जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है ना, सबसे पहले अगर इफ अ मेल और फीमेल हैव मानूर आप सेडेंटरी इसका लाइफस्टाइल, आंसर कर दो। जी, जो अगर किसी भी मेल या फीमेल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि नो एक्सरसाइज, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टुवर्ड्स लीड्स टुवर्ड्स द CVDs। इसके अलावा जो हम ऑफ कोर्स अगर एक बंदा ओबीस है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं उसकी जो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की। डेफिनेटली अगर एक बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये वाली सारी
जो कॉरोनरी डिजीज़ेज़ हैं इनकी वजह से ही यूजुअली जो है या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही ओबेसिटी का भी लिंक्ड है, और फिर ओबेसिटी या कोई ओवरवेट है तो फिर सीवीडीज़ के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। अब जो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड इज़ वॉक, एनी काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, वॉक, जॉग, स्विम, बाइक, साइक्लिंग, इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज जो है वो सीबीडी के आई मस्ट से कि एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो ही हम जो हैं वो सीबीडी से हमें प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा व्हाट फूड्स आई रिकमेंड इज़ जो है हम लो फैट डाइट यूजुअली अपनी लें, और हम लोग जो हेल्दी फैट्स लें जैसे नट्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। अगेन अगर आप पोल्ट्री ले रहे हो या आप इवन आप मटन ले रहे हो, इस तरह का कोई आप रेड मीट ले रहे हो, तो फिर स्किनलेस पोल्ट्री पोल्ट्री हो और जो लीन कट हो मटन का या बीफ का। और आप अपना जो डेली फैट इंटेक है ना, मैं ये बात कर रही हूँ सैचुरेटेड फैट्स की, जो फैट इंटेक है ना उसको आप लिमिट कर दो 4 to 6% ऑफ द टोटल किलो कैलोरीज। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज टेकिंग 2000 किलो कैलोरीज, तो वो टोटल अपनी कैलोरीज में से 13 ग्राम फैट्स जो है वो सैचुरेटेड फैट्स ले, बस इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। दैट वो फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर रिस्क लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड कि जो सोडियम है उसकी क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो फिर अगेन जो है सीवीडी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए लिमिट कर दें 1000 to 1500 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि स्पेशली फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर आप सॉल्ट ले रहे हो तो सॉल्ट भी 1 टीस्पून a day is enough. Okay. Thank you. It was a very compact answer. Okay, we have next question for Dr. Maria. Do eating chocolates and greasy food cause acne, or it is just a myth? आप पहले इस चीज को हम समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में कि एक्नी का फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, कौन सी ऐसी फेवरेबल स्किन टाइप होती है जिसके ऊपर एक्नी की प्रोडक्शन होती है। ऑब्वियसली आपने कभी ड्राई स्किन पे नहीं देखी होगी एक्नी। एक्नी ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन ऑयली स्किन। तो आप कह लो कि जब आप ऑयली और ग्रीसी फूड खाओगे तो यू आर प्रोवाइडिंग अ होस्ट ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन टू एक्नी। तो जितना डाइट में आपका ग्रीसी और फैटी फूड्स होंगे आपकी एक्नी उतनी ही एक्टिवेट करेगी। तो यस, एक्नी और ये चॉकलेट्स जो है, हाई शुगरी फूड्स जो है, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जो है, दे एक्टिवेट द एक्नी प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ मिथ। लेकिन डार्क चॉकलेट इट्स अ हेल्दी वन, ठीक है। उसमें भी the percentage of coca is very important, or dark chocolate is a good source of antioxidants as well. So once in a while dark chocolate ले लेना, it's not the big deal, but जो सही मीठी sweetened chocolates होती हैं they can produce it. Okay. Dr. We have this question for you. With desi food containing high amount of oil and unhealthy choices, how to eat clean amount of oil and unhealthy choices, how to eat clean, considering we don't always have time to cook, because we live in desi families, and desi families में extra oil, extra ghee का बहुत culture होता है. So how do we eat clean and how do we limit our oil intake? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग अपने घर कुक करते हुए अपनी ग्रेवीज़ में डालने की अवेयरनेस जो है ना, वो हमें कोई अवेयरनेस कैंपेन शुरू करनी चाहिए ताकि दैट इज़ समथिंग जो कि हर घर में ही यूज़ होता है। और अगर हम उसको नहीं स्टेप आउट करेंगे तो दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ जो है वो वेट गेन है। हम लोग करा देते हैं, कह देते हैं रोटी को, चावल को, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू मच, जितना जो हमारी
क्वांटिटी है ऑयल की जो कि यूज़ हो रही होती है हमारी डेली ग्रेवीज़ में, किसी भी तरह की कोई वेजिटेबल बनाइए, कोई भी तरह का सालन, ठीक है, कोई भी दाल बनाइए तो हम लोगों ने तड़का ज़रूर लगाना है उसको। तो स्टिल दिस इज़ ऑयल जो है उसकी अवेयरनेस जो है वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं यूजुअली आई ऑलवेज़ डूइंग इट कि मैं जो है वो लोगों को कहूँ कि प्लीज़ ऑयल कम डालो खाना बनाते हुए। पर्सनली व्हाट आई वुड रिकमेंड टू माय क्लाइंट्स इज़ कि मील प्लानिंग शुरू करो। मील प्लानिंग इज़ समथिंग कि जो कि आजकल के लाइफ़स्टाइल में कोई बंदा जॉब कर रहा है या वो स्टूडेंट है तो बहुत मुश्किल है कि शाम को घर आए और फिर बंदा आके खाना भी अपने लिए अलग से बनाए, फैमिली अलग खा रही है या आप अलग खा रहे हो। तो मील प्लानिंग शुरू करो। मील प्लानिंग इज़ समथिंग दैट इंक्लूड्स कि आप अपने मील जो है वो सेमी कुक्ड टाइप वीकेंड पे तैयार करके रखो। जो जब भी आपको सैटरडे संडे को घंटा 2 घंटा भी मिलता है तो आप अपने मील्स जो हैं वो कोई कुछ भी तरह का कोई चिकन मैरिनेट करके रख दो, कोई आप कबाब बना के रख दो या स्टफ लाइक दैट या हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स तैयार कर लो या कट करके रख लो ताकि आपका पूरा जो वीक है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथली गुजरे। अगर वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप मील प्लानिंग नहीं करोगे और घर में ही जो सालन बन रहा है उसी के ऊपर आप फोकस करोगे तो मुझे लगता है कि दैट इज़ समथिंग कि आपका कभी वेट लॉस नहीं होगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर वेट लॉस। तो उसके लिए यही है कि आप मील प्लानिंग करो। अदरवाइज़ आप शाम को पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई पहले से स्टॉक तैयार करके ना रखा हो तो आप शाम को इतना थके हुए आते हो कि आप कहते हो जो भी सामने आ रहा है ना अब मैं बस खा लूँ। तो इसलिए दैट इज़ सम मील प्लानिंग इज़ समथिंग जो कि वीकेंड्स पे घंटा 2 घंटे टाइम निकाल के ज़रूर शुरू करें। Okay. So it would help us to know in advance कि हमें अपना time कैसे manage करना है along with the healthy meals. So thoughts on keto diet and intermittent fasting. Dr. Maria, what do you think about this? ओके, कीटो डाइट का तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि जिस सेंटर में मैं पिछले कुछ सालों से काम कर रही हूँ तो वी आर डीलिंग विद द साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन एज वेल। तो अभी ये कीटो का फीवर जब पाकिस्तान में नहीं भी शुरू हुआ था तो आई वाज गिविंग कीटोजेनिक डाइट टू एपिलेप्सी किड्स बिकॉज कीटोजेनिक डाइट इज एक्चुअली डिजाइन फॉर देम, ठीक है, टू रिड्यूस देयर सीजर्स और उनको जो फिट्स पड़ रहे होते हैं इन बच्चों के फिट्स को रिड्यूस करने के लिए कीटोजेनिक डाइट दी जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह क्योंकि पाकिस्तान में वो ट्रेंड चला आता है जो बाहर के ममालिक में बहुत पहले 10 साल पहले से हुआ होता है, वो अब हम I always tell people कि it's not a healthy diet, it's not a balanced diet. You are taking too much fats in your diet. Plus, you are shifting your body mechanism into ketosis. ठीक है? तो इसको आप long term के लिए नहीं चला सकते और जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हैं दे आर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। इन द एंड क्या होता है आपकी लिपिड प्रोफाइल जो है, आपके लिपिड प्रोफाइल में जो आपके टेस्ट आते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल एचडीएल है, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर कीटो के बाद आप जिससे कीटो आप पूछोगे किया उसका हेयर लॉस जो है वो बिल्कुल एक कंपल्सन बन चुका है, ठीक है, क्योंकि और इसके बाद इसलिए क्योंकि इस दिस डाइट इज डिवॉइड Okay, I think Dr. Maria has disconnected, so we'll continue the session. So, what do you think, Dr. Manur, कि हम लोग Okay, so what do you think, Okay. Dr. Manur? Okay, you would like to continue? Please, Dr. Maria. अच्छा, I was discussing about keto diet. So I was saying that keto diet is devoid of calcium, phosphorus, many micronutrients. So after doing keto diet, people are facing serious hair loss, osteoporosis, bone loss, bone pains type of problems. Plus उनके जो है LDL levels जो हैं वो बहुत रेज्ड आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत रेज्ड आ रहे हैं,
तो कभी भी उस डाइट की तरफ ना जाओ जिसकी वजह से आपको बाद में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज उठाना पड़े, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ बैलेंस डाइट, इसमें बहुत सारे फूड ग्रुप्स जो है वो एब्सेंट है। तो वी ऑलवेज डिस्करेज टू यूज कीटो डाइट। कीटो डाइट जो है हमेशा मैंने एपिलेप्सी किड्स को दी है टू रिड्यूस देयर फिट्स, उनके फिट्स को रिड्यूस करने के लिए। एज वेल जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात है, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, और मैनी न्यूट्रिशनिस्ट आर गिविंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। और उन पेशेंट्स को जिनका वेट जो है बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है, स्टक हो जाता है, और इंटरमीडिएट फास्टिंग का रिजल्ट जो है, मैंने बहुत ज्यादा अपने पेशेंट्स को इंटरमीडिएट फास्टिंग करवाई है ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, क्योंकि कोविड-19 पीरियड में बहुत लाइफस्टाइल खराब हो चुका था, ना सोने की रूटीन थी, ना जागने की रूटीन थी, तो, इसी तरह खाने की भी कोई रूटीन नहीं। तो people shown a very positive result regarding intermittent fasting। माउथ के लिए में हमने खाए और इतने पीरियड में हमने नहीं खाना, तो उसमें उनका वेट रिड्यूस भी हुआ। और आई ऑलवेज प्रिफर के फूड ग्रुप्स जो हैं उनके जितना उनका फीडिंग आवर्स आ रहे हैं, जिसमें उनको अलाउ है कि आप कुछ ना कुछ खा सकते हो, तो आई ऑलवेज प्रिफर कि उनका दूध भी पूरा हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी उनकी डाइट में हो, सीरियल्स भी हो, कहीं ना कहीं वो रोटी भी खा रहे हो, तो कहीं there is no chance of vitamin or mineral deficiency if you are doing proper intermittent fasting with proper appropriate nutrients in them। ठीक है, ये अच्छा, इसकी टाइप्स की मैं थोड़ा सा बता दूं। एक 16-18 टाइप है जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन सूट करती है, एक 5-2 डाइट प्लान्स होते हैं वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलाइज चीजें हैं जो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही डिसीजन लेती है कि व्हेन और हाउ or which diet a person have to adopt। Okay. So moving on to next question, Dr. Manu, we like as student, it gets tough at times to have a workout and diet routine. So what can we do to maintain them along with their fitness, especially near exams? And students होते हैं तो उनको stress eating की भी बहुत आदत होती है. So kindly share your thoughts on this. स्ट्रेस और वेट गेन का बड़ा ही डायरेक्ट लिंक है, और स्ट्रेस ईटिंग जो यूजुअली जिसको हम बिंज ईटिंग भी कह सकते हैं, वो ये एग्ज़ाम्स यूजुअली बढ़ जाती है बिकॉज बच्चे जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ऐड करो डाइट में। जो अगर आप फिटनेस पे फोकस कर रहे हो तो जो आपकी किसी आप प्रोफेशनल से आप गाइडलाइन ले सकते हो कि अगर आपकी जो कैलोरीज हैं उनका जो मेंटेन के लिए चाहिए आपको, उससे आप थोड़ी सी कम कैलोरीज लो, लाइक -400 to 500, ताकि जो है आप अगर क्योंकि आप अगर फिजिकली इनएक्टिव हो तो आप कैलोरी डेफिशिएंट लेके आओ थोड़ा सा सारा दिन में, ताकि जो है वो वेट ना गेन हो। प्लस आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो हर 2-3 घंटे बाद उस, और बैलेंस डाइट लो, अगेन प्रोटीन सोर्सेज जो है उनका जो है इनटेक ज़्यादा करो, बिकॉज होता ये है कि आप जब किसी भी आप बहुत ज़्यादा गैप से खा रहे होते हो, फिर आप यानी कि आपने सुबह नाश्ता किया और सारा दिन आप पढ़ते हो, आपको बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया कि मैंने कुछ खाया नहीं है, तो फिर रात को आप बहुत ज़्यादा क्रेव करोगे स्वीट्स के लिए या फिर किसी भी तरह के फैटी फूड्स के लिए, कार्ब्स के लिए। तो बेहतर है कि आप अपने पास कोई बाउल्स रखो स्नैक्स के ऑफ गुड फ्रूट्स, या फिर कोई सैलेड्स वगैरह, या अगर आप अपने मील्स भी ले रहे हो तो हर 2-3 घंटे बाद अपना मील लो, ताकि आपको रात को कोई बिंज ईटिंग का अटैक ना हो। प्लस ये कि क्योंकि हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, तो हर मील के बाद, खाना खाने के बाद आप जो है वो 15 मिनट वॉक कर लो, लेकिन सेंस घर में ही वॉक करते हुए। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि पर डे हो साथ साथ वॉक कर लो 10-15 मिनट, खाना खाते ही दोबारा जाके बैठ ना जाओ। Okay. So moving on to next question. Okay, so it's kind of related to that, Dr. Maria. What are healthy eating routines, like timings and the food that we should eat at that particular time? Is there any concept about that certain foods should be eaten at certain times and avoid at other times?
Yes, there is a science behind these things. Or always remember कि timings of the meals are very important. Plus intervals of the meals are always very important. तो सबसे पहले हम अगर बात करें ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. और आई ऑलवेज डिस्करेज उन लोगों को जो स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट. तो उसमें जो है आप उसका मीनिंग ये समझ लो कि ब्रेक द फास्ट. बेसिकली सारा दिन आपने, सारी रात आपने फास्ट किया होता है, और ब्रेकफास्ट जो है वो आपका, और उसके उस ब्रेकफास्ट के जो है उसके जो कंटेंट है, उनमें न्यूट्रिएंट्स उसमें जो है फाइबर और प्रोटीन जो है वो आपकी एडिक्वेट है. ठीक है, उसका ये बेस्ट टाइम है आपके प्रोटीन का भी और फाइबर का भी टू डाइजेस्ट. प्लस जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स हैं, मिड मॉर्निंग में हमेशा जो है फ्रूट्स की एब्जॉर्प्शन का टाइम बहुत बेस्ट होता है. तो खाने के बाद फ्रूट ना ले, बल्कि मिड मील्स में जो फ्रूट लेना है इट्स बेटर. ठीक है, इसमें और इसी तरह कॉम्बिनेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हम खाना खाली रोटी और सालन इज नॉट बेसिकली अ खाना. उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सैलड्स के साथ बनेगा, तो इट विल गिव यू मोर हेल्थ. चाहे वो शोरबा बना हुआ है या फिर सालन बना हुआ है, उसके साथ आपका सैलेड का या रायते का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो इट विल गिव यू मोर हेल्थ. इसी तरह मिड में अब इट डिपेंड्स अपॉन द डाइजेशन ऑफ द पीपल एज वेल. अगर हम दूध की बात करें तो बहुत सारे लोगों को सुबह दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो दे कैन टेक इट एट नाइट. और बहुत सारे लोगों को रात को हजम नहीं होता, तो वो सुबह ले सकते हैं. ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कुछ लोगों को फील होती है आफ्टर टेकिंग मिल्क. तो कुछ टाइमिंग्स जो है वो इंडिविजुअलाइज भी हो सकते हैं. यानी कि वो मैं ये नहीं कहूंगी कि सुबह नाश्ते में ही लें. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेशन एज वेल. हम बल्क और डिनर ऑलवेज इनकरेज हम करते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल हो. लेट नाइट बिंजिंग, लेट नाइट स्नैकिंग इज नेवर इनकरेज. ठीक है, जितना लेट आप खाओगे उतना ज्यादा आपका वेट गेन होगा. जितना लेट आप खाओगे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा. रात के टाइम हम जागते हैं और हमें ज्यादा क्रेविंग्स होती है. उस टाइम हमारा जो ग्रेलिन हार्मोन है, हंगर हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है. ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल आप सो जाओ, एज सून एज पॉसिबल आप डिनर्स ले लो, और लाइट डिनर्स आर ऑलवेज इनकरेज. और अगर हम वेट लॉस की बात करें तो डिनर्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत लिमिट करके देते हैं ताकि वेट गेन ना हो. अगर कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ होते हैं तो आप उसको लंच में लें. प्लस इसमें एक और फैक्टर बहुत डिपेंड करता है आपका फिजिकल एक्टिविटी का. इफ यू आर फिजिकल एक्टिव पर्सन तो आप अपनी डाइट में सुबह के टाइम कहीं ना कहीं गुड फैट्स और कोई चिकनाई वाली चीज भी ले रहे हो. और अगर आप फिजिकल एक्टिव हो तो यू आर ट्रबल पर्सन. तो ये जब हम एज अ न्यूट्रिशनल डाइट प्लान्स भी देते हैं तो टाइमिंग्स ऑफ द मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ चीजों के स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के. अगर वो उसी टाइम पर लिए जाए तो दे गिव यू मोर हेल्दी रिजल्ट्स. Okay, so moving on to Dr. Manu, please recommend a healthy, easy, nutritional food for all three times: breakfast, lunch, and dinner. ये तो बहुत ही Dr. मतलब Manu? बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बिकॉज व्हाट आई से इज वैरायटी. अगर मैं एक सिंगल फूड रिकमेंड करूं तो दैट इज लाइक नॉट, आई थिंक, कन्वीनियंट Dr. भी Manu? नहीं है. यस, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. अच्छा, मैं कह So रही the थी कि कोई question एक is, please. सिंगल, यस, मैंने सुन लिया है. मैं कह रही थी कि कोई एक सिंगल फूड जो है वो तीनों टाइम मैं रिकमेंड जो है वो नहीं कर सकती शायद, क्योंकि व्हाट आई से इज वैरायटी, कि आपकी डाइट में वैरायटी हो, डिफरेंट फूड्स शामिल हो, ताकि आप जो है न्यूट्रिशन, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ रहे हो, आपकी न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. बट कुछ जैसे अगर मैं कुछ फूड ग्रुप्स को टारगेट करूँ तो येस, आप जो तीनों टाइम ले सकते हो वो आप
एग ले लो, या फिर आप कोई चिकन पीस ले लो, या कोई आप फिश का पीस ले लो, या फिर आप दिस इज समथिंग जो आपको प्रोटीन और फैट्स दोनों दे रहा है, तब तो चलो 2 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे जो कवर हो जाएंगे, तो दिस इज इट। Okay. So, Dr. Maria, we have a question for you about hair fall solutions. Which things to inoculate in our daily routines to prevent hair fall? ओके, उसमें कुछ बातें मैं न्यूट्रिशन के हवाले से भी बता देती हूँ, कुछ बिसाइड न्यूट्रिशन जो हमें एक्सटर्नली बालों को चाहिए होती है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, जो हम बॉडी में डाल रहे हैं, हमारे सेल्स में न्यूट्रिशन जा रही है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जिंक की डेफिशिएंसी आ रही है। जिंक की डेफिशिएंसी जो है इट लीड्स टू हेयर फॉल प्रॉब्लम। प्लस बहुत सारी डिजीजेस हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। तो फर्स्ट किसी भी चीज का सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले उस चीज का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीजन यू हैव टू रूल आउट व्हाई योर हेयर फॉल इज गोइंग ऑन, ठीक है। उसमें एक तो आपका ऑब्वियसली जेनेटिक्स का रोल आ रहा है, फिर आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। आप देखो एक सीजनल हेयर फॉल भी आता है, जिस सीजन में ह्यूमिडिटी आती है, आपके सर में बहुत ज्यादा पसीना आता है और वो कवर्ड रहता है, तो उसमें भी जो आपके रूट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उस वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। प्लस वी हैव टू चेक कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू हेयर लॉस। जिंक डेफिशिएंसी लीड्स टू हेयर ऑयलिंग भी रही होती है, कुछ लोगों के बहुत ड्राई सरफेस होती है, एक्सटर्नल ऑयल एप्लीकेशन इज नीडेड। तो वो चीजों को आपको चेक करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटीन्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं अपनी डाइट में, उसकी वजह से जो है वो हेयर लॉस हो रहा होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू रूल आउट द रीजन बिहाइंड इट। बहुत सारे लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी आर्थराइटिस की मेडिसिन ऐसी आने के बाद आपका हेयर लॉस हो जाता है, जॉन बाद है वो हेयर लॉस होता है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। और इसको ये है कि अगर हेयर की रीग्रोथ के लिए आप पूछो तो दे आर डिफरेंट रिकमेंडेशंस, और अगर टू प्रिवेंट हेयर लॉस उसके लिए जो है डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन को अपने चेक करो, अपने आपके लैब टेस्ट फेरेटिन लेवल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड लेवल्स का चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ जाएगा उसका हेयर लॉस भी उतना ज्यादा हो रहा होगा। अगर आपके आयरन लेवल्स कम है होगा तो आप उसके मल्टीविटामिन भी लो, और अपनी डाइट में वो सोर्सेज को इंक्लूड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका ओवरनाइट मसाज, बहुत सारे ऑयल्स अच्छे नेचुरल ऑयल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आमंड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, इसका अपना रोल है, ठीक है। उसका ओवरनाइट मसाज जो है वो बहुत अच्छा है। प्लस ये कि हेयर लॉस के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि थोड़े अरसे के लिए केमिकल बेस्ड शैम्पूज को क्विट कर दे, और बेशक आप साबुन से सर धो लें ताकि जो केमिकल का एक्सपोजर है उसको कम से कम लगे। और जब आपका हेयर लॉस इम्प्रूव हो जाए तो यू कैन गो फॉर अ गुड नेचुरल जो है इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड जो शैम्पू है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो डेली रूटीन्स में ऑब्वियसली बहुत ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। आपकी ओवर थिंकिंग, आपके स्ट्रेस लेवल्स, जितना आप दिमाग से काम लेते हो उसमें भी आपके हेयर लॉस का बहुत रोल होता है। तो उस स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करें, अपने स्लीप को भी मेंटेन रखें, और अपनी डाइट को भी प्रॉपर रखें विद प्रॉपर न्यूट्रिशन। जैसे मानू ने भी कहा कि न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, ठीक है। न्यूट्रिएंट डेंस मींस कि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि 20 कैलोरीज हैं और एक कप सैलेड आपके सामने पड़ा है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, आइसबर्ग, ठीक है, कैप्सिकम, कुछ भी हो सकता है, ऊपर लेमन जूस, और एक तरफ आपके सामने 1 चम्मच चीनी पड़ी है। 20 कैलोरीज दोनों में है, लेकिन यू हैव टू गो फॉर न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। तो गो फॉर, यू विल आल्सो गो फॉर अ कप ऑफ वेजिटेबल सैलेड,
ठीक है, यू विल नॉट गो फॉर अ टीस्पून ऑफ शुगर, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है और न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं दे रहा। तो न्यूट्रिएंट डेंस डाइट जब हमारी लाइफस्टाइल में होगी तो इंशाल्लाह ये हेयर फॉल और इस तरह Okay, so we have question for Dr. Mahanur. So, Dr. Mahanur, what do you think? What causes bloating and how it can be controlled? इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। समटाइम्स पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है कि कुछ लोगों की जो डाइजेशन होती है वो कोई समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सर्टेन कोई फूड ग्रुप या कोई फूड है जो कि सूट नहीं कर रहा होता, जैसे दैट कुड बी डेयरी, ठीक है, और दैट कुड बी एनी सोर्स ऑफ कार्ब्स, कोई पर्टिकुलर सीरियल या कोई ग्रेन ग्रुप है जो कि आपको जो है वो ब्लॉटिंग कर रहा होता है। दूसरा, ब्लॉटिंग हैज अ लिंक विद इन्फ्लेमेशन, तो समटाइम्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हुई होती है, तो इसलिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है वो बीच में शामिल करनी चाहिए। सारा दिन की जो आपकी डाइटरी रूटीन है उसमें हम इसको कंट्रोल इन अ सेंस इस इसलिए इस तरह कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समटाइम बहुत ज़्यादा लाइक पेट भर के नहीं खाओ, आप थोड़ा सा गुंजाइश रख के खाओ, और आप उसके बाद कोई घंटे बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं, खाना खाने के घंटे बाद कोई कहवा ज़रूर लो आप ना, जैसे कोई ग्रीन टी या कोई बीच में डिफरेंट हर्ब्स एंड सीड्स वगैरह डाल के। अच्छा, do you think कि किसी टाइप से ये gender related है? I mean, like, are male or females more prone to bloating? Like, is there something like that? No, both are equally prone. Again, it Okay. So, depends on different persons. okay, so we have again hair related question for you, Dr. Maria, and it says any hair oil recommendation for preventing hair fall? Any natural oil recommendation? Are you able to hear me, Dr. Maria? नेचुरल में जो है आमंड ऑयल का जो है सबसे अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो आमंड ऑयल जो आप अपने सामने नहीं, ठीक है। यस, आई कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you now. कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you now. पहले आवाज थोड़ी सी कट रही थी, but it's fine. ओके, okay. There are many type of oil which are very useful in preventing hair fall, or sometimes combination of oils also, or it depends upon the nature of skin of a patient कि उसको कौन सी सूट करती है। और हमारे यहाँ आजकल ये होता है कि हम ऑयल लगाते हैं और उसके बाद ओवरनाइट ऑयलिंग हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, ठीक है। तो उसमें आमंड ऑयल कुल्लू से निकलवा लो, जो मीठे बादामों का तेल होता है, इट्स वेरी गुड। फिर हमारे यहाँ आप देख लो कि गर्म सर्द वाला कॉन्सेप्ट लोगों में बहुत ज्यादा है, और वो कहेंगे कि इस मौसम में हम ये नहीं लगाएंगे, हमें गर्म लगेगा, इसका हम इस्तेमाल सर्दियों में करेंगे। तो इसमें भी आपकी बालों की नेचर का आपकी बालों की जो स्किन की नेचर है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। Okay, so we have next question for Dr. Mahanur. Okay, so we have questions related to binge eating. How do we control binge eating? Like, हम लोग usually 2 a.m. 3 a.m. तक जाग रहे होते हैं, तो हमें बहुत craving होती है. So is there a way we can control that? Because obviously, like, you can always go for healthy snacks, but we do we have cravings for snacks. So how do we control that?
मतलब डेफिनेटली एक वर्ड है जो कि मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर हम लोग 2-3 बजे तक रात को नहीं ना जागेंगे तो हम डेफिनेटली बिंज ईटिंग नहीं करेंगे। तो अगर हम अर्ली वही अगेन फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं अपने ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर और अर्ली ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, अर्ली डिनर कर रहे हैं, तो हम लोग अगर 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो जाएँगे तो हम बिंज ईटिंग जो है वो वाला फैक्टर जो है वो लाइफ़ से हम थोड़ा-सा स्किप कर देंगे। लेकिन अगेन आप अगर प्रोटीन्स जो है ना वो आपको हमेशा फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन यानी कि फुलनेस देती हैं। तो अगर आप अपने डिनर में स्पेशली व्हाट आई से इज़ कि आप अपने डिनर में प्रोटीन्स यानी कि सोर्सेज़ ज़रूर ऐड करोगे तो फिर आपको कभी भी जो है आप फुलनेस रहेगी अगर डिनर में स्पेशली तो फिर आपको रात को 12-1 बजे जाके या उससे भी लेट नहीं भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या क्रेविंग्स शुरू होगी बिकॉज़ आप फुल होगे। जब फुल होगे तो फिर यू डोंट इवन थिंक अबाउट फूड। तो इसलिए कोई भी चिकन के, फिश के लीन कट्स आप ले लो बेशक अगर कोई कोलेस्ट्रॉल अवॉइड हम कर रहे हैं तो फिर आप लीन कट्स ले लो मटन के, बीफ के। इसी तरह कोई अगर आप इवन दाल, चिकपीस कुछ भी अगर हम ले रहे हैं तो हम लोग ये अपने डिनर में इसकी एक अच्छी क्वांटिटी ऐड करें ताकि जो है हमें रात को दोबारा से भूख ना लगे और हम ख्याल ना आए बिंज ईटिंग के बारे में। Okay. So next question is very relevant and very important since we are currently in September and September is considered as POC's awareness month. So I want to ask you how to keep weight under control during PCOS because as majority of the women suffer from this syndrome. So how do you keep your weight under control during PCOS? पीसीओस के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है जानना कि why today our ladies are suffering from this disease. ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हमारे लाइफस्टाइल में आ गई हैं जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, हम जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा जितना हम उसको एक लो आप लाइफस्टाइल गुजारोगे जिसमें सारा दिन आपका बैठे रहने वाली जॉब्स हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो यू आर एट रिस्क टू डेवलप पीसीओएस। प्लस आपका ये आप समझ लो कि एक विशियस साइकिल है जिसमें आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो आपको वेट गेन की तरफ लेके जा रहा है। प्लस आपकी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स हैं जिसमें आपके सफेद मैदे का इस्तेमाल, व्हाइट फ्लावर प्रोडक्ट्स, बेकरी की प्रोडक्ट्स, व्हाइट राइस, शवारमा, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं। ठीक है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस हमारा ये डाइटरी लाइफस्टाइल ये हमें वेट गेन की तरफ लेके हार्मोनल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन हार्मोनल इश्यूज में यही है कि ओवरीज जो है दे गॉट जो है वो मल्टी वेट जो है वो लूज कराएं, तो ये पीसीओएस का मसला। और आप ये देख लो कि इसमें ज्यादातर हाइपोग्लाइसेमिक शुगर के पेशेंट्स को दी जाती है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन पेशेंट्स को डायबिटीज होने का भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इन पेशेंट के डाइट के अंदर हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो इसमें व्हाइट शुगर इंटेक को जो है वो बहुत कम कर देते हैं, व्हाइट फ्लावर और सफेद मैदे वाली चीजों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी को इनके मेंटेन और बढ़ा दिया जाता है, तो फिर जाकर इनका पीसीओएस का इशू कुछ बेहतर होना शुरू होता है। ठीक है, तो और इसमें और आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, देयर इज नो लिंक ऑफ ब्रायलर चिकन विद पीसीओएस। ठीक है, बहुत सारा ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं इस मामले में भी। देयर इज nothing to do with the feed of the chicken or there is nothing to do with the consumption of broiler chicken with the onset of polycystic ovary disease. Okay, so I would like to, because we are well into 54 minutes into this session and we have to wind it up. So I would like to show my immense gratitude and thankfulness for you guys to aware us and to inform us about such relevant topics because, हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट का इतना कल्चर नहीं होता. So it is very helpful कि we get this clinical advices from you guys.
Also, everybody who have joined this session, I thank you so much for such entertaining and for such interacting session. Also, you can also approach Dr. Manu and Dr. Maria individually, and you can also consult them for your if you have any queries, and their credentials as well as their emails and as well as the process of how to connect to them will be soon posted on our website, on our Facebook page. So stay tuned for that. And again, I would like to say thank you so much for joining in, guys. Thank you very So this much. is we are going Thank to you. wind it up Welcome. now. Okay.